সীমান্তে বিজেপির পাশে এসে দাঁড়ালো জনতা। অবৈধ পুশিনের চেষ্টা করতেই বিএসএফ কে ধাওয়া দিল সাধারণ বাংলাদেশিরা। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে পুশিনের চেষ্টায় সদস্যদের ধাওয়া করলো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে হুঙ্কার দিয়ে বিএসএফ কে তাড়া করতে দেখা যায়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় खबर, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज। लालमनिरहाट वाला ये बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडिया का, वहां पर इंडियन बीएसएफ की दुर्गत बना दी गई है। वहां पर भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी गई है। वहां पर इंडिया को नाको चने चबवा दिए गए हैं, किसी और के द्वारा नहीं भाई, बांग्लादेश बीजेपी की तरफ से, बांग्लादेशी विलेजर्स की तरफ से, बांग्लादेशी आम शहरियों की तरफ से किस तरह से उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई अपनी बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी बीजेपी के साथ। और वहां पर हो क्या रहा था ये मैं आपको बताता हूं, फिर वीडियो भी देखेंगे और वीडियो में आप सब कुछ देख लेंगे, फिर आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें कैसे जो लालमनिरहाट वाला जो ये बॉर्डर है, वहां पर दोस्तों बीएसएफ कुछ लोगों को पुश इन करने के लिए बॉर्डर के ऊपर लेकर आता है, पुश इन करने के लिए बांग्लादेश वाली साइड पर। आपको पता है कि आजकल वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो सख्त सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो बहुत ही सख्त वहां पर निगरानी सर्विलेंस कर रहे हैं। वो आए हैं कुछ 7-8 लोगों को लेकर पुश इन करने के लिए, लेकिन फिर हुआ ये कि बंगला जो देशी आम नागरिक हैं, आम शहरी हैं, विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो चलते हैं और जाकर जनाब वो बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ के जवान होते हैं उनको यूं पकड़ लेते हैं। उनको कहते हैं भाई हाँ भाई कैसे, किसी के हाथ में सोटे हैं, किसी के हाथ में डंडे हैं, कोई कुछ किस अंदाज में आ रहा है, कोई किस अंदाज में आ रहा है। भाई साहब उनकी ठीक से दुर्गत बना दी जाती है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी जान बचाकर दुम दबाकर वहां से निकल जाते हैं। जो लोग होते हैं वो भी चले जाते हैं वापस, उनकी तो जान बच गई, वो तो जबरदस्ती बांग्लादेश वाली साइड पर उसको पुश इन किया जा रहा था। लेकिन भाई साहब बीजेपी इस वक्त जो है ना वो तगड़ा जवाब दे रही है बीएसएफ को, और ना सिर्फ बीजेपी दे रही है लेकिन बांग्लादेशी भी ब्रेवो बने हुए हैं यार। क्या मतलब ब्रेवो स्टाइल है यार, बड़े ब्रेव बांग्लादेशी लोग हैं और सॉफ्टवेयर इस वक्त अपडेट कर रहे हैं बार बार, अगेन एंड अगेन बीएसएफ वालों का। वीडियो देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। সীমান্তে তুমুল উত্তেজনা, বিজেপির পাশে এসে দাঁড়ালো সাধারণ জনতা। অবৈধ পুশিনের চেষ্টা করতেই বিএসএফ কে ধাওয়া দিল সাধারণ বাংলাদেশিরা। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে পুশিনের চেষ্টায় শেষমেশ লাঠিসোঁটা নিয়ে সদস্যদের ধাওয়া করলো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে হুঙ্কার দিয়ে বিএসএফ কে তাড়া করতে দেখা যায় তাদের। এ সময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এগিয়ে আসে বিজেপির সদস্যরা। এদিকে ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর সীমান্ত দিয়ে নারী ও শিশু সহ 11 জনকে বাংলাদেশে পুশিনের চেষ্টা করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়। এরপর সেখানে বাড়ে নজরদারি। বিজিবি সদস্যদের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারাও সতর্ক রয়েছেন এবং বিজিবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয়রা। সীমান্তের কাছাকাছি আসবেন না। ধরা পড়ছে, তখন থেকে বিজিবি মনে করলে ওনাদেরকে এখানে সীমান্তে রাখছে। তবে পুশিনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশে নজরে আসা এসব মানুষদের প্রতি মমতা হারাননি বাংলাদেশের মানুষ। 3 দিন ধরে সীমান্তেই জমির আইলে বসে কখনো রোদ কখনো বৃষ্টির মাঝে যখন তারা, তখনই গ্রামবাসী মানবিক দৃষ্টিতে খাবারের ব্যবস্থা করছেন তাদের। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, গা ধোয়া নেই, কিচ্ছু নেই, সারাদিন এইভাবে পথে ঘাটে বসে। আর কতদিন থাকতে হবে জানি না। খাওয়া দাওয়া রাত্রিবেলায় খাবার দিয়ে গেছিল, ভাত তাই খাইছিলাম। ভারত থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ভারতের একাধিক সীমান্তে কড়া নজর রাখছে বিজিবি। বিজিবির এই কাজে পাশে দাঁড়িয়েছে দেশের সাধারণ জনতা। দিন থেকে রাত সার্বক্ষণিক সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবির সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাহারায় অংশ নিয়েছেন সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষও। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা সদা প্রস্তুত বিজিবির পাশে। পুশিন রোধে কোনো প্রকার পুশিন হতে দেব না, অবৈধ পুশিন
বিজেপির পাশে আমরা সবাই সজাগ আছি গ্রামবাসী। এদিকে পুশিন ঠেকাতে সুনামগঞ্জের সীমান্ত এলাকায় বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে। টহলের পাশাপাশি 90 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার জনসাধারণকে সজাগ থাকার জন্য বিজিবির পক্ষ থেকে মাইকিং করে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রতিরোধে সুনামগঞ্জ সীমান্তে জেলার 90 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার মধ্যে 6টি স্থান কড়া অরক্ষিত নজর অবস্থায় রাখছে। আছে, যেখানে নেই কোনো কাঁটাতার। এসব অরক্ষিত এলাকায় বিজিবির পক্ষ থেকে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুশিং এর জন্য ওরা সারা রাত তো পরিশ্রম করে। আমরা গ্রামবাসীরা এই বিজিবির সাথে সারা রাত সর্বক্ষণ তাদের সাথে আমরা এই পুশিং প্রতিরোধ করার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত ইনশাল্লাহ। সব মিলে দেশের বিভিন্ন সীমান্তে পুশিনের চেষ্টা ঠেকাতে বিজিবি যেমন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে, তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষও। দিনরাত টহল, নজরদারি এবং জনসচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিজিবি এবং সাধারণ মানুষের এই সমন্বিত উদ্যোগ আরও জোরদার হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स और इसी तरह जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनका किस तरह से आमना सामना हो रहा है। और इस वक्त जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो फुली तैयार है, वो खंदक खोद रहे हैं जमीन के नीचे, वो वहां पर छुप कर भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स और इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ होने जा रहा है। ये जो जून के महीने में, अल्लाह ना करे यार, देखें बैठकर आप बात कर लें, टेबल टॉक के जरिए दुनिया के बड़े बड़े मसले, ईरान, अमेरिका, इजराइल वाली जो जंग है वो खत्म हो सकती है। तो ये कौन सी इतनी बड़ी जंग है, ये भी बैठकर आप हल कर सकते हैं इसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ये जंग खत्म नहीं करना चाहते, और जो नरेंद्र मोदी हैं और अहमद शाह हैं वो भी नहीं करना चाह रहे। तो और कौन करेगा भाई? आओ ना, मिल बैठ कर बात करो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटी सी चिंगारी है ना, वो बड़ी आग में बदल सकती है अगर फौरी तौर पर इसको डिप्लोमेटिकली इसको आपने ना हल किया। इसका सलूशन यही है कि आप सफारती हल इसका निकालें, यानी बैठें, मिलकर बातचीत करें, जहां पर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, ना कि आप उनके बंदे मारें वो आपके मारें, ना कि आप गैर कानूनी तौर पर देखें बांग्लादेश में लोगों को पुशिंग किया जा रहा है इंडियन की तरफ से। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है? ऐसा ना करें आप। इससे सख्त रद्द अमल बांग्लादेश दे रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।